Let's start the lecture again. Next topic is terms related to the spherical mirror. These are the small terms C, P, R. What is the C? C is the center of curvature. How you can find the center of the spherical mirrors? Come back to the sphere from where the mirror have been made. This is the sphere again. The center of the sphere is called the center of curvature, and this is denoted by the C. What is the pole? The center of the mirror, either it is the convex mirror, either it is the concave mirror. The center of the mirror is called the pole or the vertex. It is abbreviated by the capital P. Curvature, what is the radius of curvature? And the radius, what is the radius? The distance from the center to the, either it is to the end of this part. This is called the radius of curvature. So it is abbreviated by R. And principal focus and the focal length, this is left over. After explanation of another diagram, I will discuss that what is the principal focus and the focal length. Here this also the same diagrams from where you can see what is the C, P and the R. Focus and F and small f is not over there. Next, come to the next page, that is the page number 40, I think. Characteristics focus of a concave and the convex mirror. How the rays are coming and where is the focus. Principal focus or the focus point is the same. First, the left side figure is that the concave mirror. Concave mirror, how it is the concave mirror? Because its inner side is highly reflecting. The rays are coming, the left side mirror is the concave mirror. The rays are coming from there and reflecting and focusing at the single point. After reflecting, focus at a single point. That point is denoted by capital F. So this point F is called the principal focus, okay, where all the rays merge at a single point, converge at a single point. This point is called the principal focus, which abbreviate किया हुआ है. F is the principal focus, where all the incident rays after reflecting converge at single point. This point is called the principal focus or the focus point. It is abbreviated by the capital F. C is there, this is the center of the sphere, and P is center of the mirror. P is there. And what is the small f? Small f is the focal length. Focal length, how you can find out the focal length from the concave mirror? The distance from the capital F and the P, capital P, the distance between the capital F, that is the principal focus. The distance between the principal focus and the pole, that is called the focal length. Okay, clear? That is called the small f. Now come to the right side mirror, that is called the convex mirror. Convex mirror, the outer side of this mirror is highly reflecting, either whether the inner side is coated. The rays coming out from the source are reflecting, not converging. These rays are called the diverging. After striking, after reflecting surfaces, these diverge from the mirror, and in dotted form these are converge at the point F. This point is called the principal focus. Now जो real में converge हो रही हैं, this form the real image. जो real में converge हो रही हैं, this form the real image. और जो खुद से dot 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 करके पीछे कोई इन्हांस करके उनको मिलाया जा रहा है, वहाँ पे जो फोकस पॉइंट बन रहा है, उससे जो इमेज बनता है उसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज. क्लियर? जो इमेज खुद से बनाती हैं, इमेज रिफ्लेक्ट होने के बाद खुद से कन्वर्ज हो जाती हैं, उनसे इमेज जो बनता है उसे हम कहते हैं रियल इमेज. और ये जो डाइवर्ज हो जाती हैं बाय द कन्वेक्स मिरर, डाइवर्ज हो गई ना, एक्चुअल में रेज आई, डाइवर्ज हो गई, कन्वर्ज नहीं हुई, फैल गई हैं, टकराई और सारी डायरेक्शंस में फैल जाती हैं. इमेज नहीं बनता तो उन्हें पीछे 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 इन्हांस किया गया, डॉट 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 लगा के ज्वाइन किया गया, तो दीज ज्वाइन एट अ सिंगल पॉइंट. दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस. यहाँ पे वो फोकस हो रही हैं. P और F के दरमियान का डिस्टेंस होगा, दैट इज़ कॉल्ड द फोकल लेंथ. इन द नेक्स्ट टॉपिक आई विल आस्क अबाउट यू कि रियल इमेज कहाँ से बन रहा था, कनकेव मिरर से या कन्वेक्स मिरर से बन रहा था. रियल क्यों बन रहा था? बिकॉज एक्चुअल में रियल रेज आती हैं, वो कन्वर्ज हो जाती हैं रियल में, उन्हें खुद से इन्हांस करके हमें नहीं मिलाना पड़ा था, कन्वर्ज नहीं करना पड़ा था. जबकि जो कन्वेक्स मिरर है
उसमें हमें खुद वो डाइवर्ज हो गई थी सारी की सारी रेस, उन्हें खुद से पीछे जाके मिलाना पड़ता है, तो उसे वर्चुअल इमेज बनता है, वो रियल नहीं होता। ओके, ये टर्म्स इमेज से बनने वाली हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में स्लाइड में। ये दीज आर द एरोज, एरोज मस्ट पता होने चाहिए इंसिडेंट रेज के कमिंग इनसाइड एंड आउट, डाइवर्ज होने के और नर्स होने के। ये नर्स इंसिडेंट रेज आर कमिंग दिस साइड एंड डाइवर्ज हो रही हैं और ये नहीं हो रही हैं। क्लियर, डाइवर्ज हो रही है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कनकेव एंड द कन्वेक्स मिरर? F lies in front of the mirror. F lies in front of the mirror. F is real. Why it is real? Because F real because it comes after measuring this. यहाँ पे आ जाइए, F जो है वो बिल्कुल मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने है और यहाँ पे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बिहाइंड पाया जाता है। ओके, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ मिरर है, मिरर जहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहा है वहीं पे उसका F है। जबकि कन्वेक्स मिरर में जो यहाँ पे F है वो बिहाइंड द मिरर है। यहाँ पे F रियल है बिकॉज यहाँ पे सारी रियल इमेज से बन रहा है, रियल रेज के मिलने से बन रहा है। यहाँ पे ये रियल रेज के मिलने से नहीं बन रहा, बल्कि उसे इन्हांस करके बनाया जा रहा है। तो यहाँ से जो कनकेव मिरर है वो रियल इमेज देता है, यहाँ से जो है वो वर्चुअल इमेज देता है। वहाँ पे सारी की सारी रेज जो हैं वो कन्वर्ज हो जाती हैं। तो इस लेंस को हम कनकेव मिरर को हम लेंस नहीं मिरर, इस कनकेव मिरर को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि ये सारी रेज को कन्वर्ज कर देता है। ये जो है कन्वेक्स मिरर, इसको हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, बिकॉज ये कन्वर्ज नहीं करता, सारी की सारी रेज को डाइवर्ज कर देता है। देयर आर 3 डिफरेंसेस ओवर देयर कनकेव मिरर एंड द कन्वेक्स मिरर्स, and the fourth one is you can draw the diagrams as well. Okay, next come to the page number 40. This is the page number 40. Take a spoon activity and this. Okay ji, reflection of light by spherical mirror. So like the plane surfaces, spherical mirrors, like spherical mirrors mean concave mirror and the convex mirror, can they obey the laws of reflection? Yes, these mirrors obey the laws of reflections. In these mirrors, angle of incidence is equal to the angle of reflections. First point laws of reflections का ये था। Second point था incident ray, number 2 normal, and number 3 reflected ray at the point of incidence lies in the same plane. ये जो 2 points हैं laws of reflections के, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, इनको ओबे करते हैं। सो स्फेरिकल मिरर्स जो हैं वो प्लेन मिरर सरफेसेस की तरह रिफ्लेक्शन ऑफ लॉज को ओबे करते हैं, फॉलो करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ जी, एक एक्टिविटी से इसको प्रूव करें कि करते हैं या नहीं करते। तो टेक अ कन्वेक्स मिरर, ये एक्टिविटी स्कूल में परफॉर्म करवाई जाती है, अपने घर में कर सकते हैं। टेक अ कन्वेक्स मिरर और इमेज एंड और अ वेल पॉलिश स्पून। तो घर में स्पून पड़ा होगा, वेल पॉलिश स्पून पड़ा होगा, आप स्पून अपने हाथ में पकड़ें, उसकी इनर साइड पे भी अपना इमेज देखें और उसकी आउटर साइड पे भी अपना इमेज देखें। एक साइड पे आपका इमेज इरेक्ट नज़र आएगा, इरेक्ट मीन सीधा, और अदर साइड पे, आउटर साइड पे उसका इमेज उल्टे नज़र आएंगे आप। तो इन मिरर्स में भी एक मिरर में आप उल्टे और एक में सीधे नज़र आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ कन्वेक्स मिरर। अगर आपके पास मिरर नहीं है तो आप वेल पॉलिश स्पून लें। द इमेज ऑन द आउट साइड ऑफ द स्पून, बाहर वाली जो साइड है वहाँ पे आपका इमेज कैसा नज़र आएगा। इन बोथ यू कैन सी द इरेक्ट इमेज। आउट साइड पे आप अपना इमेज देखें, आपको दोनों में अपना इमेज सीधा नज़र आएगा। हेड ऊपर ही होगा, आपकी टांगें नीचे, जैसे आप बैठे हुए हैं सीधे, तो इसका मतलब है कन्वेक्स मिरर में यू ऑलवेज फाइंड योर इरेक्ट इमेज। तो आपका वेल पॉलिश स्पून जो है वो बिहेव लाइक अ convex mirror. This is the activity given, and further it can be explained. Take a pencil या hold a pencil, tail over right by mistaken. Hold a pencil with its tip in upright position in one hand, outside in your spoon. एक हाथ में पेंसिल पकड़ें, एक हाथ में स्पून पकड़ें। आपने क्या करना है, स्पून को पेंसिल के पास लेकर आना है। ओके, एक दूसरे के पास लेके आना है। आप देखेंगे अपराइट इमेज बन रहा है, मतलब इरेक्ट इमेज बन रहा है। करेक्टरिस्टिक्स देखनी है इमेज की, आपने करेक्टरिस्टिक्स देखनी है इमेज की कि क्या आपके पास इमेज बन रहा है पेंसिल का, सीधा बन रहा है। अगर टिप आपने ऊपर रखी हुई है तो क्या टिप ही ऊपर बन रही है, नंबर 1। नंबर 2 इज़ द इमेज इरेक्ट और इन्वर्टेड। इमेज इरेक्ट है या इन्वर्टेड, उल्टा बन रहा है। नंबर 2, अगर आप पेंसिल को मूव फार्दर, दूर लेकर जा रहे हैं तो इमेज स्मॉलर होता चला जा रहा है और लार्जर होता चला जा रहा है।
ये चीज़ें नोट करनी है। नंबर 3 आपने ये देखना है कि आप उसके फोकस को क्या करते हैं, क्या दूर ले जाने से पेंसिल फोकस उसका धुंधला सा हो रहा है या क्लियर नज़र आना शुरू हो जाती है, पास लाने से क्लियर नज़र आती है या दूर करने से पेंसिल क्लियर नज़र आती है। तो उसकी इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने नोट करना है। एक हाथ में स्पून पकड़ें, एक हाथ में पेंसिल को पकड़ें और ये एक्टिविटी घर में करके देख लें। सारे क्वेश्चंस ही दिए हुए हैं कि क्या होता है इमेज के साथ। तो ये एक्टिविटी लिखी हुई है, अपराइट पोजीशन इन वन हैंड, इन अदर हैंड ट्राई टू लुक एट इट्स इमेज, इस इमेज क्रिएट, इस इमेज इरेक्ट है, सॉरी ये इरेक्ट, स्मॉलर और लार्जर, मूव द पेंसिल अवे फ्रॉम द स्पून, और कन्वेक्स लेंस भी ले सकते हैं स्पून की जगह पे। image becomes smaller or larger, guess whether the image will move close to or farther from the focus. Okay, next come to the use of the convex and the concave mirrors. Very important uses of the concave mirrors. शेविंग मिरर्स में लोग शेव करते हुए छोटी छोटी शेव करनी होती है तो ऐसे मिरर यूज़ करते हैं जिनसे उनको क्लियर ज़रा बोल्ड करके बड़ा बड़ा इमेज नज़र आता है। तो कनकेव मिरर में ज़रा ज़्यादा नज़र अच्छा आ जाता है, उसको यूज़ करते हैं। टॉर्च लाइट्स में हम ऐसे मिरर्स को यूज़ करते हैं जिससे कम लाइट का बल्ब लगा होता है लेकिन रोशनी ज़्यादा उसकी होकर नज़र आती है। सर्च लाइट्स में यूज़ होता है, व्हीकल हेडलाइट्स में यूज़ होता है, यूज बाय द डेंटिस्ट टू गेट द लार्ज इमेज ऑफ द पेशेंट टीथ। नज़र आ रहा है कि और ज़्यादा व्यू को बड़ा करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इन सोलर फनांसेस टू कंसनट्रेट हीट। यूज़ ऑफ द कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर में आपने साइड मिरर्स देखे होंगे गाड़ियों के। साइड मिरर्स के तौर पे कन्वेक्स मिरर क्या करता है, पीछे की काफ़ी सारी गाड़ियों को व्यू को छोटा करके और गाड़ियों का व्यू सीधा दिखाता है। तो वहाँ पे काफ़ी सारा एरिया जो है उसको कवर करके दिखा देते हैं। नंबर 2, जब आप मरी वाली साइड पे जाते हैं या हिली एरियाज़ में जाते हैं तो वहाँ पे रोड्स जो टर्न्स करके लगे होते हैं, वहाँ पे पिक्चर में दिखाया हुआ है इस किस्म के कन्वेक्स मिरर्स यूज़ किए जाते हैं जो आने वाली गाड़ियों को आपको पहले से दिखा देते हैं टर्न्स वाले रोड्स के ऊपर कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो व्यू काफ़ी सारे व्यू को, काफ़ी बड़े व्यू को छोटा करके आपको दिखा देते हैं, तो आपको टर्न्स में लगा जाते हैं। व्हीकल्स एज अ रियर व्यू मिरर्स, रियर व्यू, रियर बोलते हैं पीछे वाला व्यू सारे का सारा जो है वो आपको ट्रैफिक वगैरह का या उसका साइड मिरर पे हमें पीछे का सारा व्यू दिखा देता है।